ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਈਡਲ ਗੈਸ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਗੈਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਡਲ ਗੈਸ ਤੇ ਰੀਅਲ ਗੈਸ। ਆਈਡਲ ਗੈਸ ਇਟ ਓਬੇਸ ਗੈਸ ਲਾ ਅੰਡਰ ਆਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਟ ਓਬੇ ਗੈਸ ਲਾ ਓਨਲੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ठीक है बेटे। नो गैस इज आइडल, कोई गैस आइडल नहीं होती। ऑल गैस इज आल रियल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम इज निगलीजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਦੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਆਕੂਪਾਈਡ ਦੀ ਗੈਸ। ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। इट ओबे इन दी गैस इक्वेशन की पी वी इजिकल टू एन आर टी। तो इनकी की होंगी है पी प्लस ए एन स्केयर वी स्केयर वी माइनस एन बी इजिकल टू एन आर टी। ठीक है बेटे, ये सी दोनों के डिफरेंस याद कर लेना बेटे, बहुत इंपोर्टेंट है। नैक्सट फिर अपने को आंदा क्रिटिकल टैंपरेचर की डेफिनेशन। की होंगे क्रिटिकल टैंपरेचर? क्रिटिकल टैंपरेचर ऑफ अ गैस में बी डिफाइंड एज दैट टैंपरेचर above which it cannot be liquefied, however high pressure may be applied on the gas। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ above which it cannot be liquefied, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। however high pressure may be applied on the gas। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। क्रिटिकल टैंपरेचर की हो जाएगा? क्रिटिकल टैंपरेचर ऑफ अ गैस में बी डिफाइंड एज दैट टैंपरेचर और टैंपरेचर अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। मतलब गैस में आप लिक्विफाई ना कर सकिए जिथे। ठीक है। जिमें कि द इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर ऑन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज फाउंड टू वेरी इंपोर्टेंट एज हायर द टैंपरेचर ऑफ गैस मोर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। क्योंकि जिन्ना ज़्यादा टैंपरेचर होएगा उन्होंने उन्ना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बेटे लिक्विफाई करना। ठीक है। मोर डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड। ठीक है। क्योंकि उन्ना ही ज़्यादा फिर अपन प्रैशर लगाना पेगा, उनके उपर प्रैशर लगा के उनके मोलीक्यूल्स को क्लोज लैके आना पेगा। नैक्सट है बेटे डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। ये आप पहला भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट के भी वेपर की होंगे है। वेपर बेटे वो सबसटांस होंगे है ਜਿਹੜੇ वैसे तो ਹੁਣ गैसीਅस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ बट रूम टैंपरेचर ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। रूम टैंपरेचर ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਗੈਸ रूम टैंपरेचर ਤੇ ਵੀ ਗੈਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬੇਟੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏ, ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਵੋਲਿਊਮ, ਬਟ ਨੋਟ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਸ਼ੇਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। The molecule of the liquid are quite close together. The intermolecular force of attraction in liquid are quite large. The molecules of liquid are in the state of constant rapid motion. The average kinetic energy of the molecule of liquid is directly proportional to their absolute temperature। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ? ਕਿਨੈਟਿਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਪ ਨੋ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ, ਵੋਲਿਊਮ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਚ ਹਾਈਅਰ ਦੈਨ ਗੈਸ ਬਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੋਲਿਡਸ, ਕੰਪਰੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਸੋਲਿਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਗੈਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। Vapor pressure of a liquid at any temperature may be defined as pressure exerted by vapor present above the liquid in equilibrium with the liquid at that temperature। मतलब बेटे ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਪਰ ਬਣਨਗੇ। ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਵੇਪਰ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਵੀ ਵੇਪਰ ਬਣਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਪਰ ਬਣਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹੋਰ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੇਪਰ ਬਣਨਗੇ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਉਨੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਵੇਪਰ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਕਲੀਬਰੀਅਮ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਕਲੀਬਰੀਅਮ ਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਵੇਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ? ਵੇਪਰ, ਉਨੇ ਹੀ ਵੇਪਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ठीक है, मतलब जी रिएक्शन आ एक इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाएगी। फॉरवर्ड जिन्ना रेट ऑफ फॉरवर्ड होएगा उन्ना रेट ऑफ की हो जाएगा बैकवर्ड, मतलब जिन्ने वेपर बननगे लिक्विड तो उन्ने ही वापस वेपर तो की बन जाएगा लिक्विड। उस स्टेज पर जाके ਜਿਹੜੇ वेपर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ? ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੋਏਗੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ वेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤੇ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, जिन्ने जल्दी वेपर बन गए उन्ना ज़्यादा वेपर प्रैशर होएगा। इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर, टैंपरेचर बनाने अपन पता है टैंपरेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रैशर तो इंक्रीज होएगा ही होएगा। ठीक है बेटे। फिर है बेटे अपने को बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट की होंदा है? बॉइलिंग पॉइंट आप नॉर्मली कह दें जिथे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट कह दें, बट इनकी आप वधिया तरीके डेफिनेशन देने की डेफिनेशन होंगी है भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिफाइंड एज अ टेंपरेचर एट विच द वेपर प्रैशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रैशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक इहो जिहा टैंपरेचर होंदा है किसी भी लिक्विड का जिथे लिक्विड का जिहड़ा वेपर प्रैशर है, लिक्विड का वेपर प्रैशर है वो किहदे बराबर आ जाए? एक्सटर्नल प्रैशर के, मतलब एटमोसफेरिक प्रैशर के बराबर आ जाए। ठीक है बेटे। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रैशर किहदे बराबर आ जाए? एटमोसफेरिक प्रैशर के। उस टाइम पर आप कह सकते हैं भी वो लिक्विड का की आ गया जी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटे, समझ लगी। फिर इतने कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ इफैक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रैशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। जोड़ा बाहर वाला प्रैशर है ना एटमोसफेरिक प्रैशर, इनका बॉइलिंग पॉइंट से की इफैक्ट पैंदा है? देखो बेटे जो बाहर वाला प्रैशर अपने को ज़्यादा होएगा, इफ द एक्सटर्नल प्रैशर इज़ हायर, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, उन्ना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। जिमें कि आप कहने एग्जाम्पल सिंपल कह दिए भी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सैल्सीयस है। ठीक है बेटी। बट जेकर उन्होंने आप हाई प्रैशर के बॉयल करने की कोशिश करांगे, ठीक है, जिमें कि आप कुकर के करते हैं तो कुकर के उनका प्रैशर अंदर की हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। फिर वो 100 तो वध टैंपरेचर पर जाके बॉयल होएगा, 100 डिग्री से बॉयल नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि आप हमने डेफिनेशन पढ़ी है भी जो बॉइलिंग पॉइंट होंदा है, जोड़ा की होंदा बेटे अपने को बॉइलिंग पॉइंट वो की होंदा है भी जो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रैशर किंदे बराबर आ जाए? एक्सटर्नल प्रैशर के। ठीक है, उस चीज़ को आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जो एक्सटर्नल प्रैशर ज़्यादा है तो उनका वेपर प्रैशर एक्सटर्नल प्रैशर के बराबर पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब ज़्यादा टैंपरेचर लेगा। ज़्यादा टैंपरेचर फिर मतलब एक्सटर्नल प्रैशर ज़्यादा है तो टैंपरेचर भी उन्हें ज़्यादा देना पेगा ताकि उनका वेपर प्रैशर किंदे बराबर पहुँच सके? एक्सटर्नल प्रैशर से। इसे करके बेटे कुकर दे विच वाटर में ज़्यादा टैंपरेचर देना पैंदा तां ही वो आपके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर पहुँचता है। तो जे एक्सटर्नल प्रैशर घट है तो बॉइलिंग पॉइंट भी की होएगा उनका घट होएगा। जिमें कि आप एल्टीट्यूड पर चल जाइए, पहाड़ी इलाके चले जाइए, उपर आपको पता है एक्सटर्नल प्रैशर घट होंदा है तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी घट जाता है, वो 100 डिग्री तो नीचे आ जाता है। ठीक है बेटे, यही होंदा बॉइलिंग पॉइंट भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रैशर किंदे बराबर पहुँच सके? एक्सटर्नल प्रैशर से। नैक्सट है ये बेटे दोनों इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिंपल भी जे आप एल्टीट्यूड से हाँ तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से की इफैक्ट पेगा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। ठीक है, तो जे आप समुद्र के तल पर हाँ तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्योंकि उत्थे प्रैशर बढ़ जाता है। नैक्सट है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड ईवेपरेशन। ईवेपरेशन तो बॉइलिंग के डिफरेंस। ईवेपरेशन टेक्स प्लेस स्पोंटेनियसली, जी ईवेपरेशन बेटे कंटिन्यू लगातार चलती रहती है किसी भी टैंपरेचर से। जिमें कि आप देखते हैं बाहर जो पानी आप सड़क पर खिंडा दिए तो हौली हौली करके उड़ता रहता है, चाहे टैंपरेचर घट है चाहे टैंपरेचर वध है, बट बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टैंपरेचर पर होंदा है। ठीक है भी 100 डिग्री सैल्सीयस से जो वाटर का टैंपरेचर पहुँचूगा तो ही बॉयल होएगा, वो अदरवाइज बॉयल नहीं होएगा। ईवेपरेशन टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस। ये सिर्फ सरफेस होंदा है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल होंगे वही ईवेपरेट होंगे, बट एक बल्क फिनोमिना है, ये पूरी बॉडी के होंदा है। ठीक है बेटे। नैक्सट है अपने को सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी सिंपल जी डेफिनेशन है बेटे, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स। मतलब सरफेस टेंशन की होंदा किसी लिक्विड का एक फोर्स होंगी है जी एक्ट करती है राइट एंगल से टू द सरफेस अलोंग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के एरिए ऑफ द सरफेस।
ठीक है, मतलब एक तरह की फोर्स है जी एक्ट करेगी राइट एंगल ते सरफेस ते ही करेगी बेटे, सरफेस ऑफ लिक्विड ते ही करेगी, लिक्विड ते ही करेगी 1 सेंटीमीटर के एरिया के जिमें कि समझ लो आ मॉलीक्यूल है लिक्विड का, ये आपके चारों तरफ राइट एंगल ते एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है 1 सेंटीमीटर एरिया के आ मॉलीक्यूल है जो सरफेस के उपर मॉलीक्यूल पे लिक्विड का रैड कलर ये सिर्फ राइट एंगल ते लगा रहा फोर्स, क्योंकि लिक्विड नीचे नीचे ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं, ऊपर तो फोर्स लगेगी नहीं, सिर्फ लिक्विड ते लगेगी। यूनिट की है डायंस पर सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि अपने को एक तरह की फोर्स है कि एक तरह की अपने को फोर्स, ये भी डेफिनेशन बेटे पूछी जा सकती है। नैक्सट बेटे आ जाता है अपने को फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, किहड़े फैक्टर अफेक्ट करते सरफेस टेंशन ते इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस टेंशन। नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी दैट अराइज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। जो सरफेस टेंशन है एक प्रॉपर्टी है, ये कहते करके होंगी है जी इंटरमोलिकुलर फोर्स है मॉलिक्यूल्स के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के जी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके करके होंगी है। ग्रेटर आर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर इज द सरफेस टेंशन, मतलब जिन्नी ज़्यादा उन्होंने मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स होएगी उन्ना ही ज़्यादा की होएगा सरफेस टेंशन होएगा। इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर ऑन दी सरफेस टेंशन, तो आपको पता जो टैंपरेचर होंगे ये की करेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिक्रीज़ करता है, तोड़न की कोशिश करता है, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगी तो सरफेस टेंशन भी की होएगा डिक्रीज़ होएगा, मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज़ विद इंक्रीज ऑफ अ टैंपरेचर, ठीक है, तो बिकम्स जीरो एट द क्रिटिकल टैंपरेचर। फिर बेटे एक क्वेश्चन आ जाता है अपने को वाइस जी फॉलिंग ड्रॉप इज सफेरिकल, जी ड्रॉप्स होंगे ने कि होंगे ने सफेरिकल होंगे, ये सरफेस टेंशन करके होंगे, क्योंकि जो इतने जो मॉलीक्यूल पे ने वाटर के मॉलीक्यूल ये अंदर में फोर्स लगाते हैं राइट एंगल से, राइट एंगल से की लगाते हैं फोर्स, ताकि ये की हो सके घट तो घट एरिया हो सके, ठीक है, लेकिन उन्हें की करने की कोशिश करते हैं तो घट तो घट एरिया करने की कोशिश करते हैं, तो ये बन जाता है एक सफेरिकल ड्रॉप की शेप बन जाता है। Spherical shape of drops, as already explained, the lowest energy state of liquid will be when the surface area is minimum। जी होंगी है अपने को लिक्विड एनर्जी स्टेट की एनर्जी जिन्नी घट होएगी उन्ना ही ज़्यादा स्टेबल होएगा, तो एनर्जी कदों घट होएगी जो उनका सरफेस एरिया की होएगा मिनीमम। तो जोड़े ये वाटर ड्रॉप्स होंगी है जोड़े वाटर के मॉलीक्यूल ने इनका एरिया घट करने की कोशिश करते हैं ताकि एनर्जी घट सके इनकी, एक हो सके स्टेबल हो सके, ठीक है। सरफेस टेंशन ट्राइज टू डिक्रीज द सरफेस एरिया, जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस एरिया घट करने की कोशिश करता है टू मिनिमम द ड्रॉप ऑफ आ लिक्विड आर सफेरिकल बिकॉज आ गिवन वॉल्यूम आ सफीयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, क्योंकि सफीयर का होंगे घट एरिया होंगे। नैक्सट बेटे जो लास्ट टॉपिक है अपने को विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की होंगी है इंटरनल रजिस्टेंस होंगी है टू फ्लो पोजैस्ड बाय आ लिक्विड, मतलब लिक्विड को फ्लो करन तो जी चीज़ रोकती है उन्होंने आप कह दें विस्कोसिटी। सिंपल भाषा च आप कह सकते हैं किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन भी लिक्विड कितना कु गाढ़ा है, ठीक है, जिमें कि अपन वाटर तो हनी शहद की गल कर रही है, दोनों विचों विस्कोसिटी किंदी ज़्यादा होएगी शहद की, क्योंकि जो शहद है वो मूव नहीं कर सकता, मतलब उनकी इंटरनल रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटे, तो वाटर ईजिली मूव कर सकता है। समझ लगी बेटे विस्कोसिटी की, ठीक है। ये है बेटे अपने को अज का लास्ट टॉपिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो इंटरनल रजिस्टेंस टू फ्लो पोजैस्ड बाय अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। ओके बेटे, आई होप ये सारा चैप्टर तुहानूं वधिया समझ लग्या होएगा। ओके, थैंक यू।